مجھے میزبان مکرم نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کا شان سناؤں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج اس دن کی روشنی میں تمہیں رات کے تارے دکھاؤں۔ میرا دل کرتا ہے تمہیں جو میری طرف میرا دل کرتا ہے کہ آج میں یار غار پیغمبر، رفیق ہجرت، رفیق کوثر، رفیق مزار، رفیق جنت، طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، عتیقہ، عفیفہ، ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کے باپ جناب ابو بکر صدیق اکبر کے سر کے تاج کے ہیروں کی چمک دکھا۔ زندہ زندہ بولے زندہ۔ شرط صرف اتنی ہے کہ توجہ میری طرف اور زندہ دلی کا ثبوت دینا ہے۔ مجھے فیڈ بیک چاہیے، مجھے پتا چلے کہ باقی صحابہ کے اصلی عاشق بیٹھے۔ روٹی ٹکورا لینا اصلی عاشق، خون دینے والے قرآنوں میں سے نیو اے سلور اولڈ از گولڈ، ایسا پرانے ہی چھو آج کل دن نمے دھمالے آلے آگئے۔ واہ واہ واہ۔ اس لیے اگر آپ کی پوری توجہ رہی تو میں آج تمہیں دن کی روشنی میں بھی رات کے تارے دکھانا چاہتا ہوں۔ کرسیاں یہ پاک کیا کرو، سبحان اللہ آخر سوار کرتے ہیں۔ میں بڑھو علاقے تو بڑا گیلا رہا دے سامنے آلے کو چاول کھویں دو سبحان اللہ ہوا دیں اے مٹن چکن گروہ اے نہیں زبان نہ لے۔ خاص طور پہ سارے مولوی جیرے تو سویرے شام آدم سبحان اللہ آکھو جنت درخت لگ گئے، میں کہ سارے آپ دھوکے باسا انہیں زندگی سبحان اللہ نہیں آتی، درخت ہی تو ہونے۔ اس لیے میں کرسیوں والوں سے اور سٹیج والوں سے سبحان اللہ کی امید رکھوں گا تاکہ میں آج اپنے دل کی بات تمہارے دل میں اتار سکوں۔ میرے دوستو پوری توجہ رہے، گفتگو کی ابتدا اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک رات کا سناٹا تھا، رات کی تاریکی تھی، رات کی ظلمت تھی، رات کا اندھیرا تھا، رات کی سیاہی تھی، رات کی تنہائی تھی، رات کی رانائی تھی، اور طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی ہیں۔ اچانک آسمان کی طرف نظر پڑی تو طیبہ کائنات نے دیکھا کہ آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں، آسمان پر ستارے جھل ملا رہے ہیں، تل ملا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، چمک اور دمک رہے ہیں، چہک اور مہک رہے ہیں۔ تو طیبہ کائنات نے پوچھا اللہ کے پیغمبر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ قربان ہوں، ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ جو آسمان پر ستارے چمک اور دمک رہے ہیں، یہ جو آسمان پر ستارے جگمگا اور مسکرا رہے ہیں، حضور ان ستاروں کی تعداد کیا ہے؟ پوری توجہ، مولانا قائم الدین عباسی کا بیٹا ہوں، ایک توحید کا جملہ دے کے بات کو آگے بڑھانے چلا ہوں۔ جب طیبہ کائنات نے پوچھا اللہ کے پیغمبر ان ستاروں کی تعداد کیا ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے فوراً فی البدی یہ بھی کہا کہ عائشہ میں عالم الغیب ہوں، ابھی بتاتا ہوں کتنے ہیں۔ بلکہ اللہ کے پیغمبر نے کہا عائشہ واللہ عالم انا لا ادری، اللہ جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن ہاں میرا ایک آئیڈیا، میرا ایک ٹیسٹ، میرا ایک وجدانی کیفیت کا اظہار تخیل و تصور کہ یہ
सितारे लातादार, ये सितारे बेशुमार, ये सितारे अनगिनत। अगर कोई इंसान इन्हें शुमार करना चाहे तो वो गिनते गिनते थक सकता है, मर सकता है, उठा सकता है, कैलकुलेशन का निजाम फेल हो सकता है, हिस्से खत्म हो सकते हैं, लेकिन कोई सितारों को शुमार नहीं कर सकता। तो तैयबे कायनात ने फौरन सवाल पे सवाल कर दिया कि अल्लाह के पैगंबर, अगर ये सितारे लातादार, ये सितारे बेशुमार, ये सितारे अनगिनत, तो फिर मुझे ये तो बताएं, आपकी पूरी उम्मत में, आपके पूरे असाब में, आपकी पूरी जमात में, आपके सारे यारों में, आपके पैरोकारों में, आपके इरहबदारों में, आपके जानिसारों में, आपके मुफाशियारों में कोई ऐसा भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारे से भी ज्यादा? नारे तकबीर, शान सिद्दीक अकबर, मुस्तफा का हमसफर, मुस्तफा का हमसफर, खतीब यूरोप एशिया साहिबजादा मौलाना मोहम्मद याह्या अब्बासी, इमाम अहले सुन्नत मौलाना क़यामुद्दीन अब्बासी, इमाम अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी। नारे तकबीर। मुझे अभी मौलाना अब्दुल मोहम्मद साहब ने बताया कि ये बड़ा पुराना स्टेज है, अकाबिर का स्टेज है, और कहा जी आपके वाले साहब भी यहाँ आते थे, तौसी साहब, बुखारी साहब, कुरैशी साहब, सारे हजरात। फिर मेरे दिल में चाहा आज मैं कुछ दिल वाली ये अकाबिर की बरकत है, पूरी तवज्जो रहे। मगर मैं जितना वजह में को दिन सीरत सुना वाला बात है, दिन सुने था सिर्फ सीरत है, जोड़ दे पुत्रों में कोई जब टुकड़ा नहीं होता है, नहीं साहब ना साहब क्या चाहते हो, पूरी तवज्जो रहे, पूरी तवज्जो। मैं बात को आगे लेकर चलना चाहता हूँ। तो ये कायनात ने जब सवाल किया कि अल्लाह के पैगंबर, आपकी पूरी उम्मत में कोई ऐसा भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारे से भी ज्यादा? तो अल्लाह के पैगंबर ने फौरन, पूरी तवज्जो चाहूंगा, फौरन फौरन फिल बदी जवाब दिया। सोचो विचार करके नहीं, कैलकुलेट करके नहीं, सर खुजा के नहीं, इधर उधर देख के नहीं, फौरन बर्जस्ता जवाब दिया। हाँ आयशा, मेरे यारों में, मेरे पैरोकारों में, मेरे वफादारों में, मेरे जानिसारों में, मेरे वफा शियारों में, मेरे हुब्बदारों में, मेरे इन यारों में मेरा यार उमर बिन खत्ताब वो मुकद्दस इंसान है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा है। एक दफा पूछ के कहो सुभान। अब तैयबे कायनात है, जब जब जवाब सुना, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखना। तैयबे कायनात ने जब जवाब सुना, बिलाचा वही बाले ने मुरीद को बिलाचा बिला है, पूरा मजमा टपते आते चलता से यो जट्टे ना बड़ा रोला, पूरी तवज्जो है तवज्जो, पूरी तवज्जो। और छोरा पैसे बना दे बाबे को, बना दे, मैं पैसे वाला कहीं हाँ मैं आप भी लेना, लोगे को तुम्हें को लेना पूरी तवज्जो है। पैसे शैसे जेब है, चला मेरे को बहुत देते माशाल्लाह, बहुत देते। मैं एक जाते के मजाक मजाक का जाके उनका इधर थर्मल पावर प्रोग्राम है, मैं खुले दिल दा आदमी हां, दिल वड्डा दी ते अल्लाह। मैं क्या एक जमाना हा, मैं यतीम हां, प्यू मां नुहे फौत थी गया, 2 साल उम्र है, यतीमी दे धक्के खाते पर्दारियां कशा कनाई, लोगों को किराया मंगते आसे। आज अल्लाह इतना दीते मैं तोरा थर्मल मोल गिन सकता। मैं जो ये मजाक के जाके 6 महीने एजेंसियां मेरे एहसास की तहकीक करेंगे, यकीन मानो 6 महीने मेरे को बाद एक पता लगा जो पटवारी होते मेरे एहसास से बुले जो देखो ये जमीन चौके कारोबार चौके जायदाद चौके किथा किथा दे बैंक बैलेंस किथा किथा कारोबार है, वो मैं छिटे थी कि क्या है जो तुसा जाके मैं थर्मल पावर गिन सके। वह मैं दिल की गाल की दिल बड़ा होना चाहिए, पूरी तवज्जो है। पैसे तो हुए पैसे वाला रोला जो बंद दे सके छछदा नहीं। मैं मौला मदीना बासी दा पत्र वो करम कोने में एक छछदा ही नहीं, कल तक भी नहीं पता लड़े जाते जो लुंधे ने भुखे ने लुसी है जे तक पैसे न दिखाओ मैं छड़ दे नहीं। आज तोड़े सटे जे वह मौत आ गई, जे तक पैसे न दिखाओ तोरा मौलवी नहीं मैं छड़ता। हां इसलिए ये आदि ना बनाओ, और ये गरीब नाथ खानों का हक होता है। ये जरे पैसे ले खुले दे ना ब्रांडेड मौलवी को, यो पैसे अपनी इलाके ते बस्ती दे गरीब इमाम को दे दी तनख्वाह 7,000 को भी बढ़ा दी थी।
جنے گھر دے بالے دے کپڑے کہنی کپڑے انتا چتی کہنی اللہ کی قسم ہوں کو اگر 2000 دی تو ان بالے دے کپڑے گھدے کعبے دے رب دی قسم تیری جنت پر تو بال اڑے ہی نہ لے دینے کو آگے ٹھیکے میں مولی عبدالمحمد کو چھوڑے سا تکڑی فیس گن سا جے میں فیس نہ نہیں میں دیتا تو رجدہ تیرے بے دینا پہلے ٹھیک ہے ویلان قرآن واسے میں آپ جے بیچنا میں نوٹے میں کاپیاں رکھے نہ دے ٹھیک ہے غریب دہاق ہو دے امیر دہاق نہیں ہوگا مولی عبداللہ نہ پڑھاؤ پوری توجہ جن کی توجہ ہے کیا دو سبحان مجاہدوں والی نہیں مجاہدوں والی سبحان میرے دوستو توجہ رہے جب طیبہ کائنات نے اللہ کے پیغمبر کا جواب سنا کہ ہاں عائشہ میرے یاروں میں میرے وفاداروں میں میرے پیروکاروں میں میرا یار عمر بن خطاب وہ مقدس انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے تو طیبہ کائنات خاموش ہو گئی طاہرہ کائنات خاموش ہو گئی تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے توجہ پوری میری طرف عائشہ کیا بات ہے میرے جواب کے بعد میں نے تیرے چہرے پر اظہار اطمینان نہیں دیکھا عائشہ کیا بات ہے میرے جواب کے بعد میں نے تیرے چہرے پر خوشی کی ہنسی کی کرن رقصان نہیں دیکھی عائشہ کیا بات ہے میرے جواب کے بعد میں نے تیری جبین پر اظہار مسرت نمایاں نہیں دیکھے عائشہ کیا بات ہے میرے جواب کے بعد میں نے تجھے مطمئن نہیں دیکھا تو طیبہ کائنات نے کہا سامن والا والے میرے جملوں کو توجہ سے سننا اور دل کے کمپیوٹر میں سیو کرنا بڑی دیر تک بڑی دور تک انجوائے کرتے رہو گے طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے پیغمبر آج میری ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی حضور نے پوچھا عائشہ وہ کون سی تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے پیغمبر میں تو آج تک یہ سمجھتی تھی کہ شاید آپ کی پوری امت نے آپ کے پورے اصحاب میں آپ کی پوری جماعت میں آپ کے سارے یاروں میں آپ کے پیروکاروں میں آپ کے انہوداروں میں میرا باپ ابو بکر سب سے آگے ہوگا عبادت میں اول اطاعت میں اول ریاضت میں اول بندگی میں اول جستجو میں اول حمد و ثنا میں اول تنجید و تقدیس میں اول تعمید و تسبیح و تحریر میں اول جذب و ایثار و قربانی میں اول کیف و سرور و مستی میں اول لیکن حضور آپ نے میرے سوال کے جواب میں میرے باپ ابو بکر کا نام نہیں لیا بلکہ عمر کا نام لیا حضور میں آج سمجھ گئی کہ میرا باپ ابو بکر پیچھے رہ گیا عمر میرے باپ سے آگے نکل گیا سامن والا والوں نبی کا جواب سنو تمہارا ایمان تازہ ہو اور تمہیں صدیق کے عظمت کے میناروں کی بلندی کا اندازہ ہو پیغمبر نے کہا عائشہ 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 تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی عائشہ 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 تم نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں تم نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں تو اگر مجھ سے یہ پوچھ لی کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں تو پھر زبان محمد سے سن فرمان محمد سے سن وجدان محمد سے سن کلام محمد سے سن بیان محمد سے سن جیندے 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 گھر رات ٹکر مل جاؤ گے میں کیا جملہ آدھا نا نخرے باز لوگے واسطے جنہیں گرہ پا اپنا نام گھنن دے دو ہوئے جنہیں گرہ پا نام گھنن دے کرسی دے گھنن دے پوری توجہ رہے کرسی دے باندھو کرایہ تا دیتی گئے کرو سبحان اللہ حضور نے کہا عائشہ تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں اگر تو مجھ سے یہ پوچھتی تو پھر زبان محمد سے سن کلام محمد سے سن وجدان محمد سے سن بیان محمد سے سن فرمان محمد سے سن عمر کی ساری عمر عمر کی ساری عمر ایک طرف تیرے باپ کی
उलमा से, ज़ुअमा से, शुअरा से, खुतबा से, मुबल्लिगीन, मुकर्रिरीन, मुफक्किरीन, मुदर्रिसीन, मुहक्किकीन, मुसन्निफीन, मुअल्लिफीन, मुदक्किकीन से, आले दिल, आले ज़ौक़, आले नज़र, आले बसीरत, आले बसारत, आले उम्र, आले डीप से मुखातब होकर कहा करता हूँ कि उलमाए किराम आपने कभी इस जुमले के रोक कर, कभी इस जुमले के समंदर में गोता जन होकर, इसकी डीप में, उमक में, गहराई में जाकर कभी सोचा कि अल्लाह के नबी ने कितना बड़ा जुमला कह दिया? कितना बड़ा जुमला कि आयशा उमर की सारी उम्र एक उम्र आम बंदे की नहीं, उम्र मेरे जुमले पे गौर करें, उमर की सारी उम्र एक तरफ। अल्लाह के नबी ने उमर जैसे उमर के लिए यह जुमला कह दिया कि उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की हिजरत वाली एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। कौन उमर? कौन उमर जिसको मांगने के लिए मेरा पैगंबर हकीम काबा में आधी आधी रात को रोता नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े तो फरिश्ते भी नारे तकबीर लगाते नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े तो पैगंबर भी मुस्कुराते नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े तो सहाबा भी जश्न मनाते नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े तो काबे का दर खुलता नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े रब की तारीफ पर काबे में चौखट पर तौहीद के सजदे शुरू होते नजर आए? कौन उमर जो जमीन पे बोले अल्लाह अर्श पे कुरान बनाता नजर आए? कौन जो कलमा पढ़े फरिश्ते भी नारे तकबीर लगाते नजर आए? जो कलमा पढ़े पैगंबर मुस्कुराते नजर आए? जो कलमा पढ़े सहाबा जश्न मनाते नजर आए? जो कलमा पढ़े काबे का दर खुलता नजर आए? जो कलमा पढ़े काबे की चौखट पे तौहीद के सजदे शुरू होते नजर आए? कौन उमर जो जमीन पे बोले अल्लाह आसमान पे कुरान बना दे? कौन उमर जो नबी को पर्दे का मशवरा दे अल्लाह कयामत तक शरीयत बना दे? कौन उमर जो मकाम इब्राहिम पे नफल का इरादा करे अल्लाह कयामत तक हज का हिस्सा बना दे? कौन उमर जो तैयबा कायनात की सफाई में जो जुमला कहे अल्लाह उसी जुमले को सेम टू सेम हू बहू रू बरू सू बसू बना के कुरान उतार दे? कौन उमर? कौन उमर जिसके लिए पैगंबर कहे उमर किसी का बाप मरे बच्चे रोते हैं, बच्चा मरे माँ बाप रोते हैं, उमर जिस दिन तू मरेगा मेरा इस्लाम रोएगा? कौन उमर जिसके लिए पैगंबर कहे लौकाना बाकी नबी लौकाना उमर? उमर मेरे बाप नबूवत का दरवाजा था, अगर खुला होगा तेरे सर पे नबूवत का ताज आता? कौन उमर जिसके लिए पैगंबर कहे उमर 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 अल्लाह ने तेरे नाम में तेरी शक्ल में वो रोग वो तकवा वो चाहो चलाल रखा है कि जिस गली से तू गुजरे शैतान नहीं गुजर सकता। सावन वालों आज तक उमर की रोग बाकी है, उमर चाह रहा कहीं उमर का नाम लिख दो, न शैतान गुजरेगा न उसका कोई चेला गुजरेगा। जिसके लिए पैगंबर का उमर अल्लाह ने तुझे ऐसा रोक दबदबा जाहो जलालो कमाल दिया है कि जहां से तू गुजरे शैतान नहीं गुजर सकता। उमर का रोब आज तक जारी है, कहीं बाबे उमर लिख दो फिर तमाशा है। इससे भी आगे चलता हूं। कौन उमर? कौन उमर जिसके होते हुए लोग आए और कहे दरिया नहीं चलता? उमर दरिया को चट लिखे और कहे तेरी जुर्रत कैसे हुई? उमर की अदल वाली हुकूमत और तुम लोगों को प्यासा मार रहा है? उमर ने कहा जाओ मेरा खत दरिया को दे दो। क्या ईमान की अज़मतें थी, क्या ईमान का कमाल था, क्या ईमान की बुलंदी थी। हाँ चिट डाला, खत डाला, आज तक ठाके मार के बैठा है। उमर बैठे हैं, एक साहबी भागते हुए आए। कौन उमर? साहबी आए, अमीरुल मोमिनीन फला गार से आग निकल के आ रही है, मदीने की तरफ।
उमर ने कहा मदीने की तरफ आओ, ये लो मेरी चादर, जाओ और ये चादर उसके सामने खड़ी कर दो, आपको कहो उमर कहता है मदीने की तरफ बाद में आना, पहले जुर्रत है तो उमर की चादर तो जला के दिखाओ। तारीख आज भी सोने के पानी से लिखती है, आग वापस धार में चली गई। कौन उमर जिसके दौर में जमीन में जलजला आए, कौन उमर अपना दुर्रा उतार कर जमीन पे मारे और जमीन से कहे खबरदार उमर की अंदर वाली हुकूमत और तू काफी है, जाओ सामने वाले के खैरों जमीनों तारीख उठा के पढ़ो। 1400 साल गुजर गए, उमर ने दुर्रा मारा, उसके बाद से लेकर आज तक पूरी दुनिया में सिलसिला आया, मदीने में फिर नहीं आया। कौन हो जिसके लिए पैगंबर कहे उमर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद है, खुला होता तेरा सर इस लायक था कि सर पे नबूवत का ताज। उस उमर के लिए अल्लाह के पैगंबर ने कहा आयशा उमर की सारी उम्र है। मैंने सिर्फ उमर की जिंदगी की एक झलक दी है, झलक, वगरना मैं उमर पे बोलूं तो मुझे उम्र नू चाहिए। जींदे लाइन जींदे बूढ़ी बिचारे इंतजार एक टुकर नहीं खाता होगा तो सदस्य मौज में तो एनर्जी होगी कि बिजली आ या सोलर प्लेट लगे ख्याल साथ में पगड़ो पानी करते आप हल देंगे। मौलाना ज़ियाउल मरहूम एक शेर पढ़ा करते थे गूंगे लोगों के लिए कि गीले कागज की तरह ठहरी जिंदगी अपनी, गीले कागज की तरह ठहरी जिंदगी अपनी, कोई लिखता भी नहीं कोई जलाता भी नहीं। वो सीधे कागज ना बड़ो ना साड़ा ना लिखने दे। हाँ, जब भी अल्लाह रसूल और सहाबा की बात हो दिल के दरीचे खोल के मुजाहिदों की तरह कहा करो सुभान। मेरे दोस्तों वो उम्र, मैं उस उम्र की उम्र पे बात करूं, मेरी उम्र खत्म हो जाए, लेकिन मैंने सिर्फ झलक दी है कि कौन उमर, किसके लिए पैगंबर ने कहा आयशा उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की हिजरत वाली एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। अब आओ उस रात की तरफ चलते हैं और मैं तुम्हें उस रात के तारे दिखाऊं। मैं कब्रिस्तान में चला नहीं सकता, कब्रिस्तान नजरे में तो आप पढ़ते टप क्या गया, इसलिए मेरे साथ जिंदा बन के बैठो। बिल्कुल आखिरी चंद मिनट आपके ले रहा हूँ। ये मेरा उन्वान बहुत लंबा मैंने छेड़ दिया, मेरे दिल में अल्लाह ने डाला 3 घंटे का उन्वान है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको घंटे पौने घंटे में 50 मिनट में मैं उसको वाइंड अप कर जाऊँ। मुश्किल है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किनारे कश्ती लगाने के चक्कर में हूँ कि कहीं किनारे कश्ती लगा जाऊँ। आओ मैं तुम्हें उस रात की गलियां घुमाऊं, आओ मैं तुम्हें उस रात के तारे दिखाऊं, आओ मैं तुम्हें उस रात की सैर कराऊं, आओ हम उस रात में जरा देखते हैं, झांकते हैं, दूरबीन लगाते हैं, उकाबी नजरों से देखते हैं कि आखिर इस रात में, तवज्जो रखना मेरे जुमले पे, आखिर इस रात में ऐसा हुआ क्या कि एक रात उमर जैसे उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर दी। लगते थक गया मैं दुआ याद होगा मैं ढेर नखरेबाज हो। आखिर ये एक रात उमर की सारी उम्र को क्रॉस कैसे कर दी? ये वो रात है जब मेरा पैगंबर अपने बिस्तर पे महविस्त राहत है, बड़ी तेजी के साथ शॉर्टकट कर रहा हूँ, महविस्त राहत है, शेर जली हक वली अबू तुराब असदुल्लाह गालिब शौहर ज़हरा गौहर काबा अबुल हसन अबुल हुसैन जन्नत के शहजादों का बाप जन्नत की जागीर का मालिक अली देनाते आते जन्नत की जागीर का मालिक कातिल मरहब फातेह खैबर जनाबे शेर खुदा अली अल मुर्तजा सबके दो रज़ी अल्लाह ताला वो भी पैगंबर के साथ मैं व्यस्त राहत है। आधी रात का वक्त है, अचानक अली शेर खुदा कहते हैं मुझे गली में शोर महसूस हुआ। मैं उठा, पूरी तवज्जो, मैं उठा और मैंने जाके झांक के देखा, देखो तो सही गली में शोर कैसा है। मैंने जब झांका तो अली कहते हैं मैंने बाहर देखा काफिर खड़े हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं, नंगी तलवारें लेकर खड़े हैं कि नऊज़ बिल्लाह आज की रात मोहम्मद की आखिरी रात है। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली शेर खुदा
फरमाते जब मेरे कानों में ये जुमले आए ना कि आज की रात अली की आखिरी रात है, नबी की आखिरी रात है, तो हजरत अली फरमाते हैं मैं परेशान होकर भागा और मैंने फौरन आकर हुजूर को जगाया। पूरी तवज्जो चाहूंगा, हुजूर को जगाया। हुजूर जाग पड़े और जाके में पूछा अली क्या हुआ, आधी रात को क्यों जगाया? अली शेर खुदा ने कहा अल्लाह के नबी खैरियत नहीं है। हुजूर ने फिर पूछा अली हुआ क्या? अली शेर खुदा ने कहा अल्लाह के पैगंबर बाहर तलवारें लेकर काफिर आपको मारने आए हैं। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा अली घबराने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अली ने कहा कब हो कैसे? हम तो वो सौ, हम निहत्ते, वो मुसल्ला, कैसे कुछ नहीं होगा? हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा अली घबराने की जरूरत नहीं, मारने वाले अभी आए, बचाने वाला पहले से खड़ा है। अली घबराने की जरूरत नहीं, मारने वाले अभी आए हैं, बचाने वाला पहले से खड़ा है। अली ने पूछा हुजूर अब क्या हुआ? हुजूर ने पूरी तवज्जो या शेख ओ मोरी साहब या शेख के दे ये बट्टा टल लागी रहे मैं आ जाया खाना वाला पता नहीं केली को खानी दे रहा। तवज्जो रखी करो, लाइव तबसरा अच्छा नहीं होता, तकरीर के बाद तबसरा करना के तकरीर कैसे लाइव लोग तो मैं बातें शुरू थी मैंने सुनी लिखी हां इना क्या ये तेरा काम ना की करो बंदे दा रिदम न तोड़े। मेरा ज़ौक़ टूट जाए खुदा की कसम मेरे पास टांके वाली मशीन नहीं कि मैं दोबारा टांका लगाऊं। मैं दिल से बोलता हूँ, रिदम से बोलता हूँ, चाहता हूँ कि मजमा भी उसी रिदम के साथ बैठे। पूरी तवज्जो रहे, एक सूफी खट्टे ठीक बैठे उन्होंने रिदम तोड़ते पूरी तवज्जो रहे। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अली शेर खुदा ने पूछा हुजूर अब क्या हुआ? हुजूर ने कहा कुछ भी नहीं। पूरी तवज्जो, एक बहुत बड़ा जुमला देने चला हूँ साहब ने जाके हुजूर अब क्या होगा? हुजूर ने कहा कुछ भी नहीं। हुजूर वो कैसे? वो 100 है, हम 2 हैं, वो मुसल्ला है, हम निहत्ते हैं, कैसे कुछ नहीं होगा? हुजूर ने फरमाया अली देख तो सही मैं आज इनके साथ करता था। जिंदो वाली सुभान अल्लाह को तुम्हें जुमला देना चाहता हूं। हुजूर ने कहा अली देख तो सही मैं इनके साथ करता क्या हूं? हुजूर क्या करेंगे? फरमाया अभी मिट्टी उठाऊंगा, शाकल वजूद पड़ूंगा, इनके चेहरों में डालूंगा, इनको ऐसा अंधा करूंगा कि ये मिट्टी डालूंगा रहेगी कयामत तक। अल्लाह करे 2-4 तो मेरी बात समझ आए। डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। मुझसे किसी ने पूछा ये इस्तेमाल कहां से किया? कयामत तक। पूरी तवज्जो कयामत तक का इस्तेमाल कहां से किया? मैंने कहा मैंने हदीस में पढ़ा है कि कयामत जब आएगी दिन जुमा का होगा, तारीख 10 मुहर्रम की होगी, मट्टी ढूंढ लेना कहां नजर। इसलिए पैगंबर ने कहा डालूंगा आज रहेगी कयामत। कयामत के दिन भी जिन चेहरों पे मट्टी हो समझ रहेगी कयामत पर नाम से रहेगी कयामत। हुजूर ने मट्टी उठाई, शातुल वजू पड़ी, यूं डाली, कुफ्र उस दिन से अंधा हुआ आज तक। ना उस दिन हक नजर आया ना आज हक नजर आता है। हुजूर अंदर से गुजर गए, बहुत ही शॉर्टकट कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें छोड़ हुजूर अंदर से गुजर गए और सीधा दर सिद्दीक। अब इसी दौरान अबू जाल एंड कंपनी, अबू जाल एंड को, अबू जाल एंड ब्रदर्स, अबू जाल एंड सन्स दीवार फैलानी अंदर गए कि हुजूर को नऊज़ुबिल्लाह शहीद करें। आगे देखा, पूरी तवज्जो मैं आखिर में अंदर गए, देखा सामने हुजूर की चारपाई है, हुजूर की चारपाई है और हुजूर की चादर है। बड़ा कीमती जुमला देने चला हूँ, बेतवज्जी में ज़ाहिर कर दे। हुजूर की चारपाई, हुजूर की चादर और कुछ सोया हुआ है। अबू जहल को, पूरी तवज्जो से मेरे जुमले को नोट करना, अबू जहल को गलत फहमी लग गई कि शायद ये नबी, शायद ये नबी है। करीब गया, पूरी तवज्जो, करीब गया और करीब जाकर कहा कौम या मोहम्मद। कौम अरबी में कहते हैं उठने, उठो या मोहम्मद। क्यों? उसने समझा नबी है, लेकिन जब चादर हटाई
اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ وہ نبی نہیں، وہ تو علی ہے۔ وہ تو سارے بولو وہ تو علی ہے۔ مظفرگڑھ والوں، ساون والا والوں، میں کیوں نہ کہوں کہ یہ عقیدہ 1400 سال پہلے ثابت ہو گیا کہ جس نے سب سے پہلے علی کو نبی سمجھا تھا وہ ابو جہل تھا۔ آج اگر کوئی علی کو نبی سمجھے وہ ابو جہل کی نسل ہو سکتا ہے، محمد کا امتی نہیں۔ علی اٹھے، بالکل ختم کرنے چلا، علی اٹھے، چادر ہٹائی، ابو جہل نے دیکھا کہ یہ تو علی ہے، میں نبی سمجھ رہا تھا یہ تو علی ہے۔ ابو جہل حیران پریشان سرگردان پشیمان گوش بدلدم خاک میں غرق، لرزہ برندام ہوا، پاؤں کانپنے لگے۔ پوری توجہ میری طرف، صوفی صاحب یا شیخ ادھر دیکھ، میں ادھر کھڑا ہوں، ہاں پوری توجہ میری طرف، کہ وہ کانپنے لگا کہ یہ کیا، میں تو سمجھ رہا تھا نبی ہے، یہ تو علی ہے۔ آگے بڑھا اور علی شیر خدا سے پوچھا، علی نبی کہاں گئے؟ نبی کہاں گئے؟ علی نے نہ جھوٹ بولا نہ تکیے کا در کھولا۔ علی نے نہ جھوٹ بولا نہ تکیے کا در کھولا۔ علی نے یہ نہیں کہا مجھے پتا نہیں، یہ نہیں کہا کہ مجھے پتا نہیں۔ کیوں؟ حضور سارا روٹ بتا کے گئے تھے، سارا شیڈول بتا کے گئے تھے۔ علی میں یہاں سے وہاں جاؤں گا، اس کو لے کر وہاں جاؤں گا، وہاں سے 3 دن بعد مدینے جاؤں گا، یہ لوگوں کی امانتیں پڑی ہیں، تو بھی تقسیم کر کے ہمارے پیچھے آ جانا۔ تو تاریخ بتاتی ہے، حدیث بتاتی ہے، حضور سارا شیڈول، سارا پروٹوکول، سارا روٹ علی کو بتا کے گئے تھے، چھپا کے نہیں گئے تھے۔ لیکن علی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پتا نہیں۔ علی نے نہ جھوٹ بولا نہ تکیے کا در کھولا۔ علی نے جب ابو جہل نے پوچھا علی نبی کہاں گئے، علی نے کہا وہ تو چلے گئے، وہ تو سارے بولو وہ تو چلے گئے۔ ابو جہل نے پھر گھما کے پوچھا کہاں چلے گئے؟ علی نے کہا جہاں جانا تھا۔ ابو جہل نے پھر گھما کے پوچھا، پوری توجہ آخری جملے ہیں میرے۔ ابو جہل نے پھر گھما کے پوچھا کہاں جانا تھا؟ علی نے کہا جہاں چلے گئے۔ ابو جہل کو لاٹو کی طرح گھما دیا، الو کا پٹھا بنا دیا، مگر نبوت کا راز نہیں دیا۔ کیوں؟ آگے علی تھا، شیر جلی تھا، حق کا ولی تھا، جان دے سکتا تھا، نبوت کا راز نہیں دے سکتا۔ ابھی سے اگلا جملہ سنو اور میں بات کو ختم کروں۔ ابو جہل نے اپنے مکہ والوں کو بلایا اور بلا کر کہا مکہ والوں ادھر آؤ، یہ علی ہے، شیر جلی ہے، یہ نہیں بتائے گا، نبوت کا راز نہیں دے گا، آؤ۔ ابو جہل کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد کہاں گیا ہوگا۔ سبحان اللہ، محمد کہاں گیا ہوگا؟ لوگ آگے بڑھے، اینسنز اینڈ کمپنی اینڈ کو برادرز آگے بڑھے اور کہا ابو جہل جلدی بتا تاکہ ہم پیچھا کریں۔ اب ابو جہل کے جملے سن، میں تمہیں صدیق کی عظمت کے میناروں کی بلندی دی۔ ابو جہل کہہ رہا ہے مکہ والوں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ مکے کی دھرتی پر ابو بکر سے بڑا یار محمد کا کوئی نہیں۔ ابو بکر سے بڑا یار محمد کا کوئی نہیں۔ آج رات محمد گیا ہوگا تو تیرے صدیق پر ہوگا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں یہ عقیدہ بھی 1400 سال پہلے ثابت ہو گیا۔ سبحان اللہ، 1400 سال پہلے ثابت ہو گیا کہ ابو جہل بھی مانتا تھا کہ ابو بکر محمد کا سچا یار ہے۔ ابو جہل بھی مانتا تھا کہ ابو بکر محمد کا سچا یار ہے۔ آج 1400 سال کے بعد اگر ابو جہل کی نسل نہ مانے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں کہ ان کا باپ مان گیا ہے، ان کا دادا پر دادا پاپا گرینڈ پاپا مان گیا ہے کہ ابو بکر نبی کا سچا یار تھا۔ ہاں اسی پیغمبر کے دروازے پر جناب صدیق پہنچے، جناب صدیق پہنچے تو حضور اکرم در صدیق پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، سامنے دیکھا چودھری کے چاند سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، بھائی صاحب یا شیخ ادھر دیکھ، ابو بکر کی آنکھوں سے
आंसू टपक पड़े और अबू बकर ने रोकर पूछा, अल्लाह के नबी ये क्या माजरा, महाजा ये क्या, आप आधी रात को मेरे दरवाजे पे चल कर हुजूर कोई नौकर चाकर एलची नुमाइंदा खादिम कासिद गुलाम भेजकर मुझे तलब करते, मैं सबके पर चल के आता, आपने की तकलीफ की। पैगंबर का जवाब सुन, हुजूर ने कहा, अबू बकर तुझे पता नहीं मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं, मैं किसी का पाबंद हूँ। जैसे जैसे वो कहता जाता है वैसे वैसे मैं करता जाता हूँ। अबू बकर तुझे पता नहीं मैं तो उसका पाबंद हूँ, जैसे वो कहता है वैसे मैं करता हूँ। आज मुझे आर्डर ही नहीं था कि मैं तुझे बुलाऊं, बल्कि आर्डर ही ये था कि मैं खुद चल के तेरे दरवाजे से। अब हुजूर दरे सिद्दीक पर पहुंचे। अबू बकर ने पूछा, पूरी तवज्जो रखना, पूरी तवज्जो रखना, जो ही कोई और मेहमान आए जो मैं फौरन खत्म कर दूंगा, बेफिक्र, फकर माका यार, पूरी तवज्जो। हुजूर दरे सिद्दीक पे पहुंचे तो मेरा टाइम खत्म हो गया, 15 मिनट हो गए, मैं गरीबी में चल रहा, ताकि कोई आए मेजबान मुझे बताए, उसके बाद मैं वाइंड अप करूं। इसलिए पूरी तवज्जो है, मैं एक्स्ट्रा टाइम आपको दे रहा हूं, अपनी एनर्जी दे रहा हूं, दिल से दे रहा हूं। ये वो सके थे जहां पे मेरा बाप दरसता था, तो मदीना पासी का बेटा भी वहां गरजे तो उससे ही खुश हुआ। पूरी तवज्जो। अब हुजूर ने जब कहा, अबू बकर जैसे वो कहता है वैसे मैं करता हूँ, तो सिद्दीक अकबर ने पूछा, अल्लाह के नबी हुक्म कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? हुजूर ने फरमाया, अबू बकर दुश्मन पीछे है, चलो चलना है, चलो चलो चलना है, जाओ। तारीख की किताबों में आज भी सोने के पानी से लिखा हुआ है, जब हुजूर ने कहा ना चलो चलना है, अबू बकर ने कोई बासो तमीज, कोई मुकालमा, कोई बातें, कोई आर्गुमेंट, कोई सवाल जवाब, अब अभी रात को कैसे चलें, अभी कैसे चलें, बीवी बच्चे कैसे छोड़ूं, छोटी छोटी बेटियां कैसे छोड़ूं, बूढ़ा माँ बाप कैसे छोड़ूं, अपना सामान तिजारत कैसे छोड़ूं, एक लफ्ज भी अबू बकर ने नहीं कहा। हुजूर ने कहा चलना है, अबू बकर चल पड़ा। मैं तुम्हें इस रात की कीमत बताना चाहता हूँ कि आखिर ये रात इतनी कीमती कैसे बन गई कि उम्र की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। अबू बकर चलते 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 हुजूर ने कहा, अबू बकर जरा जल्दी चल, दुश्मन पीछे है। जल्दी चलने लगे, थोड़ी देर गुजरी, अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी जरा एक मिनट रोक के मेरी बात तो सुने। हुजूर ने पीछे देखा, मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, अबू बकर अभी तुझे कहा है दुश्मन पीछे है, तेज चल, और तू तेज चलने की बजाय मुझे कहता है मैं रोक के तेरी बात सुनूं। अबू बकर चलता भी जा, बात करता भी जा, मैं सुन लूंगा। अबू बकर ने रोक कर कहा, अल्लाह के नबी एक मिनट के लिए रोक जाए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। हुजूर रुके और रोक के पूछा, अबू बकर क्या हुआ, तेरी जान क्यों निकलने लग गई? बीवी बच्चे याद आए, माँ बाप याद आया, मेल मकान याद आया, कारोबार याद आया। पैगंबर तैयार ने कहा, वो तो सब कुछ मैं आपके पाँव की धूल पे कुर्बान कर चुका। सिद्दीक फिर क्या टेंशन, क्यों तेरा जिगर कलेजा मुंह को आ रहा है? अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी आप जहां चल रहे हैं ना, आपके कदमों के निशानों पर मुझे लहू के कतरे नजर आ रहे हैं। और अबू बकर की मोहब्बत और वफा और अदा और हया ये गवारा नहीं करता कि हुजूर के पांव जख्मी हूं, खून रिस रहा हो और मैं आपको पैदल चलने दूं। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, अबू बकर कैसी बातें करते हो, अगर पैदल न चलूं इस वक्त सवारी कहां से लाऊं? अबू बकर बैठा और बैठ कर कहा, हुजूर अगर सवारी नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर के बूढ़े कंधे मोहम्मद की सवारी। नारे तकबीर, आज अबू बकर के बूढ़े कंधे मोहम्मद की सवारी बनेंगे। अबू बकर बैठा, नबूवत को कंधों पे बिठाया। पूरी तवज्जो, आखिरी जुमला देने खत्म कर रहा हूँ। नबूवत को कंधों पे बिठाया और बिठा के चल पड़ा। सदाकत ने नबूवत को कंधों पे बिठाया और बिठा के चल पड़ा। इससे भी एक अगला जुमला कहता हूँ, चला नहीं, कंधों पे बिठाया और बिठा के दौड़।
ابھی بھی سارے نہیں بولے, اگلا جملہ کہتا ہوں, دیکھتا ہوں کس کی زبان چپ رہتی ہے. ہاں, صدیق نے, پوری توجہ سے سننا, صدیق نے حضور کو کندھوں پہ بٹھایا اور بٹھا کے اڑ مجھے پھر کسی نقاد مولوی نے کہا, ہاں نقاد بہت ہوتے ہیں نا, کسی نقاد مولوی نے کہا عباسی صاحب کہاں سے استنباط کر لیتے ہو؟ ہاں میں نے کہا یہ بھی میں نے استنباط کیا ہے, قرآن و حدیث سے کیا ہے, کہ میں نے تو تاریخ کا مطالعہ کیا, میرے نبی نے جس سواری پہ سواری کی وہ چلی نہیں, وہ اڑی ہے. کہہ دو وہ اڑی ہے. کیوں؟ میں نے دیکھا حلیمہ کی اونٹنی ہے, آتے ہوئے بیمار ہے, جاتے ہوئے اڑ کے جا رہی ہے. براق کی سواری ہے, اڑ کے جا رہی ہے. ہاں, ابو بکر کے کندھے ہیں, ابو بکر بھی اڑ کے جا رہا ہے. اور میں یہاں پر اپنا ذاتی پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا کرتا ہوں کہ اڑے بغیر یہ سفر مکمل ہوتا نظر آتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں, گئے ہوں گے, علماء بھی, عوام بھی وہاں جاتے ہیں. میں بھی بہت دفعہ اللہ مجھے لے گیا, اللہ کا کرم ہے, 33 دن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ 15 دفعہ اللہ مجھے حج پہ لے گیا اور تقریباً 52 دفعہ عمرے پہ لے گیا. الحمدللہ میں تقریباً 67 مرتبہ اللہ کے حرم کا سفر کر چکا ہوں. مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ اتنی دفعہ جانے کے باوجود بھی میں بھی 2-3 دفعہ غور کر گیا ہوں. ہر دفعہ جانے کی ہمت نہیں رہتی. ہاں 2-3 دفعہ. اور جو وہاں جاتے ہیں نا, وہ زیارہ والے آ کے گاڑیاں لے آتے ہیں اور لے جاتے ہیں, تو کچھ لوگ تو نیچے کھڑے ہو کر کہتے ہیں بس ہی تم دیکھ گی سے نہ سینا, میں تو گیٹے گردے کا مریض ہوں, میں تو شوگر کا مریض ہوں, میں تو ہارٹ کا مریض ہوں, میں تو گردے کا مریض ہوں, ایسی میں تو نیچے, میں تو دل کا مریض ہوں, میں تھوڑی چڑھ سکتا, بس ہی تم دیکھ گی. تے جڑے 2-4 راوی نوجوان ویندن وہ کیا کریں تلو بکا لے کھڑے, وہ تو منرل واٹر گندن, جوس گندن, فروٹ گندن, کھجور گندن, ایک لے کو آدھے او بھائی یار اٹھتے بہتے جلسو, کھندے پیندے جلسو, ساتھ کٹھے دے جلسو, کہیں دے کون جلسو. ابو بکر میں تیری وفا پہ, عطا پہ, حیا پہ کروڑوں جانے قربان کر دوں, نہ تو راستے میں رکا, نہ بیٹھا, نہ کھایا, نہ پیا, ایک ہی سانس میں نبوت کو اٹھا کے اڑ پڑا اور سیدھا غار ثور کے دہانے پہ اتارا. سیدھا غار ثور کے دہانے پہ اتارا. اب توجہ کرنا, اس جملے پہ چلے آیا جو ایک جملہ اس رات کو اتنا قیمتی بنا گیا کہ عمر کی ساری عمر کو تراش کر گیا. جب حضور کو کندھوں سے اتارا, حضور کو کندھوں سے اتارا اور اتار کر کہا, حضور آپ تھک گئے ہوں گے, میں اندر جا کے بستر بناتا ہوں, آپ آ کے آرام کر رہے ہیں. اب یہ وہ جملہ ہے قیمتی جس نے اس رات کو اتنا قیمتی بنا دیا کہ حق بنتا تھا ابو بکر یہ کہتا, حضور میں تھک گیا. کیوں؟ اڑا تھا, اوپر نبوت کا بوجھ تھا, پہاڑ کی چڑھائی تھی, 3 میل چڑھائی تھی. ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ میں تھک گیا ہوں, بلکہ الٹا کہا, حضور آپ تھک گئے ہوں گے, میں اندر جا کر بستر بناتا ہوں, آپ آ کے آرام کریں. یہ جملہ اتنا رب کو پسند آیا کہ عمر جیسے عمر کی ساری عمر کو تلاش کر رہا. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, سر مقام سر بلند, سر مقام سر بلند, حضرت مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب, مولانا یحییٰ عباسی صاحب, پیچھے ہو جائیں, بیٹھ جائیں پلیز, بیٹھ جاؤ. میں آخری جملے کہہ کر بات کو وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں. اللہ کے پیغمبر کو کندھوں سے اتارا اور اتارتے ہی کہا, حضور آپ تھک گئے ہوں گے, آپ رکے, میں اندر جا کر بستر بناتا ہوں, آپ آ کے آرام کریں. تو پیغمبر نے پھر مسکرا کر کہا, ابو بکر کیسی باتیں کرتے ہو, بستر تو ہم لے کر نہیں آئے. تو ابو بکر نے مسکرا کر کہا, اللہ کے نبی اگر سواری نہیں تھی, ابو بکر کے بڑے بندے محمد کی سواری بن گئے. اگر بستر نہیں ہے تو کیا ہوا, آج ابو بکر کی چھوڑی محمد کا بستر بنے گی. حضور نے, حضور 2-3 منٹ سے مجھے دے دو. حضور نے کہا ابو بکر
चलो फिर अंदर चले, पूरी तवज्जो चाहूंगा। हुजूर ने कहा चलो फिर अंदर चले। अबू बकर ने कहा नहीं आता, आप 1 मिनट बाहर रुके, 1 मिनट बाहर रुके, मैं पहले जाऊंगा। मतनंदा कोई काला, नीला, पीला, सावा, रत्ता, कोझा, कुजच्चा, कोतरा, खटमल बैठा हो, मैं अपने पैर दे ठुटे नाल चला तोड़े तक सुना। तो सर रुको, मैं पहले जाऊंगा। अबू बकर ने कहा हुजूर मैं अंदर जाकर पहले सफाई करूंगा, झाड़ू दूंगा, फिर आपको बुलाऊंगा। हुजूर ने फिर मुस्कुराकर कहा अबू बकर आज कैसी बातें कर रहे हो, हाँ कि झाड़ू दूंगा, झाड़ू तो हम घर से लाए नहीं, झाड़ू कहां से लाओगे। सिद्दीक ने फिर मुस्कुराकर कहा अल्लाह के नबी सवारी नहीं थी, मोहम्मद अबू बकर के बूढ़े कंधे मोहम्मद की सवारी बन गए। अगर बिस्तर नहीं है तो आज अबू बकर की झोली मोहम्मद का बिस्तर बनेगी। अगर झाड़ू नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की पगड़ी मोहम्मद का झाड़ू बनेगी। ऐसे नहीं, ये एक रात उम्र की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। आज अबू बकर की पगड़ी मोहम्मद का झाड़ू बनेगी। अबू बकर अंदर गए, पगड़ी उतारी, झाड़ू बनाया, सफाई की, गंद क्यूरा क्रिकेट खटमल चटमल सब बाहर फेंके। हाँ, उसके बाद अबू बकर ने देखा सुराख नजर आए। अबू बकर ने अपनी पगड़ी उतारी, टुकड़े किए, सुराख बंद किए, रिदा उतारी, टुकड़े किए, सुराख बंद किए। एक रिवायत में है कमीज उतारी, टुकड़े किए, सुराख बंद किए। 1 या 2 सुराख मुख्तलिफ रिवायात है, वो बच गए। अबू बकर ने झोली फैलाई और उस सुराख पर अपना पांव रख दिया। सावन वालों, आज तुम्हें एक दिल का जुमला देने चला हूं, दिल का अपने ज़ौक़ अब्बासी के समंदर का एक हीरा देने चला हूं। पूरी तवज्जो से सुनना और दिल के कंप्यूटर में सेव करना, बड़ी देर तक दूर तक एंजॉय करते रहोगे। हाँ, अबू बकर ने झोली फैलाई और अपनी एड़ी उस सुराख पे रख दी। मैं एक दिन घर बैठा सोच रहा था अल्लाह मैं तेरी कुदरत पे, तेरी हिकमत पे, तेरी बसीरत पे, तेरी बसारत पे, तेरी दूरअंदेशी पे, तेरी उकाबी नजरों पे अल्लाह मैं कुर्बान जाऊं, तूने उस सुराख पर कपड़ा नहीं आने दिया जहां काला बैठा था। उस सुराख पर कपड़ा नहीं आने दिया, वरना हाथ भूल के उसी सुराख पे चला जाता कपड़े वाला, काले का मुंह बंद कपड़े से होता। अल्लाह ने कहा नहीं, दुनिया वालों को बताना चाहता हूं, जहां काला भौंकने की जरूरत करेगा मैं अबू बकर के पांव की एड़ी से इसलिए उस सुराख पर कपड़ा नहीं आने दिया। अबू बकर के पांव की एड़ी की ठोकर वहां पे रखी, कयामत तक के लिए बता दिया जब भी कुत्ता भौंकेगा अबू बकर की एड़ी की ठोकर खाएगा। मैं 3 घंटे के मौजूद को 1 घंटे में खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट बाद। अब हुजूर झाड़ू लग गया, झोली में बिस्तर बन गया। हुजूर आए और आकर सिद्दीक की झोली में सो गए। जिंदा जिंदा बोले सिर्फ सिद्दीक की झोली में सो गए। अब पूरी तवज्जो मेरी तरफ देख कर मुझे जवाब देना, झोली सदाकत की है, सर नबूवत का है। पीर तरीक़त अताउल रशा बुखारी कहते थे मंजर ऐसे था जैसे रहल में कुरान होता है। झोली सदाकत की है, सर नबूवत का है। ईमान से बताओ सावन वालों, दरमियान में कोई फासला था? कोई फासला था? बिला फासला। फासला कोई नहीं रहा, सारे फासले मिटा दिए, बिना फासले हो गया। अब काले ने देखा कि ये क्या, कयामत तक झगड़ा तो यही रहेगा बिला फसल वाला, और ये नबूवत से बिला फसल हो गया। अब उठू कुछ करूं, काला भागा, दिल का काला, शक्ल का काला, अकल का काला, दिमाग का काला, कपड़ों का काला, अकीदे का काला, जबान का काला, दिमाग का काला, यहाँ भी काला, वहां भी काला। काला भागा कि मैं जुदा करूं ताकि दुनिया को बता सकूं बिला फासले नहीं, फासला था। आके अबू बकर को डसने लगा, वो डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। वो डसते डसते थक गया, सिद्दीक सहते सहते नहीं थका।
आंखों से पानी टपक पड़ा। अब फिर काला भौंकता है कि अबू बकर गौर में रो रहा था। मैं कहता हूँ अंधे अंधे रोना और होता है, आंखों का पानी और होता है। अबू बकर की आंखों से पानी न निकलता, रब ने निकाला। बोलो बोलो बोलो, रब ने निकाला, रब ने निकाला। क्यों? मेरा अपना तखय्युल है, अंदाज है, इस्तेमाल है, तर्ज है कि तुम कहते हो ना यार फला जाते मेरे को रोमांटा है मगर मैं हंजू पी गया। आदो पहला तो सही गूंगे आदो और हंजू पी वे दो कहना लोग पी वे यार रोमन है मैं हंजू पी गया, मैं सुनना नहीं जो मतलब लोग अपने खड़ के रो गए हैं मैं हंजू पी गया। पर तू हंजू पी सकती, अबू बकर अपने अखी का पानी ना पी सकता। अबू बकर न रोने आया था, न रोने वाला था, न वो रोया था, वो तो कालों को कयामत तक रुलाने आया, वो तो रुलाने आया। अबू बकर की आंखों से वो पानी के कतरे न टपकते, रब ने टपकाए। क्यों? अबू बकर तू तो नहीं जगा रहा, मैं तेरी आंखों से शबनम गिराऊंगा, नबी के फूल जैसे चेहरे पर गिराऊंगा, इसी बहाने पैगंबर को जगाऊंगा, फिर मैं अपने नबी को बतलाऊंगा नबी आंखें खोल देख तो सही मैंने तुझे कैसा यार दिया। मैंने तुझे कैसा याद किया। अब एक रीजन फितरती अमल है कि अगर सांप किसी को डस जाए, सियाने लोग बैठे हो, पुराने लोग बैठे हो, कलमंद लोग बैठे हो, हुक्मा लोग, दाना लोग बैठे हो, अगर किसी को सांप एड़ी पर पिंडली पर डस जाए तो क्या कहते हैं? यार फौरन कस के पट्टी बांधो। बांधते हैं बोलो गुंगे, बांधते हैं ना। क्यों? ताकि जहर ऊपर न चढ़े। जहर सर्कुलेट करता है, जहर ब्लड में सर्कुलेट करता है, सरायत करता है, फैलता है। अगर सारे जिस्म में जहर फैल जाए तो बंदे के मरने का खतरा होता है। ईमान से बताओ सावन वाला वालों, अबू बकर ने पट्टी बांधी थी? बोलो, अबू बकर ने पाँव हटाया था। ये भी बड़ा जुमला है, अपने ज़ौक़ का एक जुमला कहता हूँ, अबू बकर ने पाँव हिलाया था? अबू बकर ने हटाना दूर की बात, उसने तो पाँव हिलाया ही नहीं। क्यों? उसे पता था पाँव हिलता है, टांग हिलती है, टांग हिलती है, नबी की आंख खुलती है, आंख खुलती है, नबी का आराम जाता है। सिद्दीक ताहिया कर चुका था, जान जाती है तो जाए पर मोहम्मद का आराम न जाए। जब वो पानी के कतरे जब जहर फैला नो, एड़ी से पिल्ली में, पिल्ली से रान में, रान से पेट में, पेट से जिगर में, जिगर से हलक में, हलक से दिमाग में, पूरे जिस्म में सर्कुलेट कर गया। तो अबू बकर इंसान है, फितरी तकाजा है, बशरी तकाजा है। अबू बकर के जिस्म में, खून में जब जहर सिरायत कर गया तो उस जहर के प्रेशर और ब्लड के सर्कुलेट की वजह से अबू बकर की आंखों से पानी टपक पड़ा। वो तू जोरदार खंघे तेरा पानी निकल पड़े, तू चार निच्छू मारे तेरा पानी निकल पड़े, तेरे सिरे दर्द पवे तेरा पानी निकल पड़े, जरा काले दे नाम दे ओ जहर और दर्द बैठा बर्दाश्त करे रहा। हुदे की जो पानी ढाए पे तते को देर रोमन आ गया और मैं आखी गया कि वही ना ढाया अल्लाह किराया। क्यों? अबू बकर तो जगह ना प्यार लाके मैं ही बहाने जगह सा वो को दिखे सा देख तो सही के जा यार नहीं हुजूर जागे जब वो पानी गिरा ना शबनम का, एक अपने ज़ौक़ का जुमला क्या करता हूँ, आधी रात को जब कली पे शबनम की गिरती है ना तो कली खिल के फूल बन जाती है। उसी आधी रात को मेरे पैगंबर के कली जैसे चेहरे पर जब अबू बकर की आंखों की शबनम के कतरे गिरे, मेरे पैगंबर भी फूल बनकर उठ गए। अबू बकर क्या हुआ? बिल्कुल आखिरी जुमला 1 मिनट से। अबू बकर क्या हुआ? सिद्दीक ने मुस्कुरा कर कहा अल्लाह के नबी कुछ नहीं, बस वो बिला फासिल का मंजर था ना, काले को बर्दाश्त नहीं हुआ, काला आया और मुझे डसने लगा, फिर मैं हंसने लगा। मैं ये जुमला पता क्यों कहता हूँ? क्यों कहता हूँ? कहीं याद है जो बंदा इतना खिलदे इतना खिलदे इतना खिलदे 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 अखी जो पानी में काला डसता रहा, अबू बकर हंसता, इतना हंसा कि आंखों से पानी टपका। अच्छा हुजूर ने कहा फिर काला डसता रहा, मैं बैठा रहा। बज़बान शायद सिद्दीक ने कहा होगा कि सुगरे गनीम न भूल तू कि सितम की शब को जवाल है, तेरा जुल्म जब बला सही मेरा हौसला भी कमाल है। हुजूर ने कहा अच्छा मेरे होते हुए काला, इसकी जुर्रत तुम्हें डसे? इधर लाई, इधर लाई।
अबू बकर ने एड़ी आगे की, हुजूर ने अपने बाएं हाथ की हथेली पर अबू बकर की एड़ी रखी, एड़ी पर बाएं हाथ की हथेली पर अबू बकर की एड़ी रखी, शहादत वाली उंगली से। एक और अपने दिल का जुमला दे रहा हूँ, शहादत वाली कौन सी? बोल बोलो कौन सी? शहादत माना गवाही होता है, गवाही वाली उंगली। हाँ, यूं यूं अजय स्टाम्प थे तुले, हुजूर ने यूं लगा के यूं लगा दिया। पूरी तवज्जो, पूरी तकरीर का खुलासा दे रहा हूँ, कसम काबे के रब की, तुमने जिंदगी में नहीं सुना, जिंदगी में नहीं सुना होगा जो जुमला मैं तुम्हें अब देने चला। हुजूर ने गवाही वाली उंगली, शहादत वाली उंगली से यूं ठप्पा लगाया एड़ी पर, जहर खत्म। अबू बकर सुनाओ अब क्या हाल है? अबू बकर ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह के नबी लगता है काले की सारी मेहनत बर्बाद है। एक जुमला देने चला हूँ इसी पे, ये नहीं था, वो जुमला और देने चला हूँ, पूरी तवज्जो से बैठना। आखिरी जुमला मेरे बयान का कि यही ठप्पा जो आज शहादत वाली उंगली, अबू बकर की एड़ी, यही ठप्पा एक दिन शहादत वाली उंगली, अली की आंखें। जिंदा बोले, जिंदा अली की आंखें। मैं तुझे इस्तेमाल करके दूं, एड़ी कहाँ, आंखें कहाँ, अली कहाँ, अबू बकर कहाँ? एड़ी, पूरी तरह मसला बताने चला हूं उस जुमले में। एड़ी इंसान की इब्तदा है, एड़ी इंसान की इब्तदा है और आंखें इंसान की इंतहा है। जो मकाम अली शेर खुदा की इंतहा को मिला, वही मकाम अबू बकर की इब्तदा को मिला। यही गवाही वाली उंगली पर ठप्पा लगाने का इशारा था। अबू बकर तुझे ठप्पा इब्तदा में लगाया, अली तुझे ठप्पा इंतहा में लगाया, तो कौन इशारा समझ जाए? अबू बकर तेरी खिलाफत इब्तदा में होगी, अली तेरी खिलाफत इंतहा में होगी। आखिर में भी कहता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इस रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू, कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना।